میرا نام نبیلہ ہے. میری حال ہی میں شادی ہوئی تھی. میرے دیور کو بھی شادی کا بہت اشتیاق تھا. جب میری شادی ہوئی تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا بھابھی اب میری شادی بھی جلدی کروا دو. میں نے ہنستے ہوئے پوچھا کیسی لڑکی پسند ہے تمہیں؟ یہ سن کر اس نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا. کچھ کہے بغیر الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گیا. اس کی نظر اور انداز مجھے بے چین کر گئے. میرے شوہر بھی اس وقت کمرے میں موجود تھے، لیکن میں نے دل کو سمجھایا کہ شاید میں ضرورت سے زیادہ ہی سوچ رہی ہوں. لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی. دیور نے جیسے یہ بات مذاق بنا لی ہو آئے دن یہی بات دہراتا بھابھی میری شادی کب کرواؤ گی؟ جب میں پوچھتی کیسی لڑکی ڈھونڈوں تمہارے لیے تو وہ پھر اسی انداز سے مجھے غور سے دیکھتا، مسکراتا اور بغیر کچھ کہے باہر چلا جاتا. اب تو معاملہ میرے لیے بہت پریشان کن ہوتا جا رہا تھا. میرے شوہر اس وقت بھی پاس ہوتے مگر دیور کو جیسے کوئی پرواہ نہ ہوتی. اس کی نظریں اور رویہ میرے دل میں خدشے پیدا کر رہے تھے. ایک دن میں چائے کا کپ لے کر صحن میں آ بیٹھی جہاں میری ساس اور دیور پہلے سے موجود تھے اور آپس میں گپ شپ کر رہے تھے. میرا شوہر بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا مگر وہ فون پر مصروف تھا، کسی سے بات کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ چائے بھی پی رہا تھا. باتوں کے دوران میری ساس نے پرانی یادیں تازہ کرتے ہوئے کہا پتہ ہے تمہارے شوہر کی منگنی پہلے موسیٰ کی بیٹی سے ہوئی تھی. بڑی نیک اور پیاری لڑکی تھی مگر افسوس کہ ملیریا کی بیماری نے اسے ایسی لپیٹ میں لے لیا کہ وہ بچ نہ سکی. اگر وہ آج زندہ ہوتی تو تمہاری جگہ وہ ہماری بہو ہوتی. میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی کہ یکدم دیور نے ہنستے ہوئے کہا اور شاید وہ میری شریک حیات بن جاتی. بھابھی یہ سن کر ساس نے فوراً اس کے کاندھے پر ہلکا سا ہاتھ مارا اور ناراضگی سے بولی کیا فضول باتیں کر رہے ہو، یہ تمہاری بھابھی ہے، کچھ لحاظ کرو. وہ ہنستے ہوئے بولا ارے اب تو بھابھی ہے، اس وقت تو نہیں تھی. اگر بھائی کی شادی اس سے ہو جاتی تو آپ مجھے اس کے بارے میں سوچتی نا. سب لوگ اس بات کو ہنسی میں اڑا کر آگے بڑھ گئے، لیکن نہ جانے کیوں دیور کے الفاظ میرے دل کو بہت برے لگے. میں دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگی اور خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی. میرا شوہر خاموشی سے چائے کی چسکیاں لے رہا تھا جیسے اسے ارد گرد کے ماحول سے کوئی سروکار نہ ہو. دیور کو تو جیسے کھلی چھوٹ ہی مل گئی ہو. کبھی ہنستے ہوئے کہتا آپ پر گلابی رنگ بہت جچتا ہے بھابھی، کوشش کریں اگر یہی رنگ پہنا کریں. میں اسے سخت نظروں سے گھورتی کہ شاید وہ سمجھ جائے، لیکن وہ تو جیسے شرم اور لحاظ سے آ رہی تھا، بالکل بے باک اور ڈھیٹ. میرے شوہر کی طبیعت بہت نرم تھی، سادگی اس کی شخصیت میں نمایاں تھی. اس نے کبھی مجھ سے کوئی خاص فرمائش نہیں کی تھی، نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں رنگ میں تم اچھی لگتی ہو. وہ ایک اچھے دل کے مالک تھے مگر دماغ ہمیشہ حساب کتاب میں الجھا رہتا. دن رات بس کاروبار کی سوچ میں ڈوبا رہتا، ہر بات کا نفع نقصان نکالنے میں مصروف. ایک بار میں نے ازراہ محبت پوچھا کیسی لگ رہی ہوں آج، تو وہ تھوڑا سا دیکھ کر بولا ہاں ویسے تو ٹھیک ہی لگ رہی ہو، لیکن طبیعت تو ٹھیک ہے نا، بیمار نہ ہو جانا ورنہ 2000 روپے تم پر خرچ ہو جائیں گے. دوسری طرف میرا دیور تھا جس کی نظریں ہمیشہ کچھ عجیب سی بے چینی لیے مجھ پر ٹکی رہتی تھی. ایک دن اس نے تو حد ہی کر دی، بغیر اجازت میرے کمرے میں داخل ہو گیا. میں اس وقت تیار ہو رہی تھی، نئی نویلی دلہن تھی، چمکیلا لباس پہنے ہوئے، بال کھلے اور ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا. اچانک وہ دروازہ کھول کر اندر آ گیا. اسے دیکھ کر میں چونک گئی اور فوراً بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر خود پر اوڑھ لیا. میں نے ناراضگی سے کہا کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے، تمہیں تمیز نہیں ہے؟ مگر وہ الٹا مسکرا دیا اور بے فکری سے بولا ارے اپنے ہی گھر میں کیسی اجازت، آپ تو غیر نہیں ہے. یہ کہتے ہی وہ آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا. میں اس کے رویے پر حیرت زدہ رہ گئی. میں نے تلخی سے کہا تمہیں کچھ کام ہے؟ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور بولا ہاں ایک ضروری بات ہے اسی لیے بیٹھا ہوں. لیکن اس کا یوں تنہا کمرے میں بیٹھنا اور بات کرنے کا انداز مجھے بہت برا لگا. میں نے صاف کہہ دیا کہ میرے پاس اس وقت فرصت نہیں ہے، تم بس یوں ہی بہانے بنا رہے ہو، مجھے پتا ہے تمہیں کوئی ضروری بات نہیں کرنی. میں نے جھنجھلا کر کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلنے لگی. جو ہی دروازے سے نکلی اچانک میرا سامنا اپنے شوہر سے ہو گیا جو غالباً کمرے میں داخل ہو رہے تھے. میری جلد بازی سے وہ چونک گئے اور بولے ارے کیا ہوا، کہاں جا رہی ہو اتنی جلدی میں؟ پھر جب وہ اندر داخل ہوا اور اپنے بھائی کو کمرے میں بیٹھا پایا تو کچھ لمحے ہمیں خاموشی سے گھورتے رہے. ان کے چہرے پر حیرانی اور شک صاف جھلک رہا تھا. میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی جیسے اندر کچھ ٹوٹنے والا ڈر تھا، کہیں وہ کچھ غلط سمجھ نہ لیں. اس لیے میرے دیور نے بات کو گھمانے کی کوشش کی اور کہا بھائی بس بھابھی سے گپ شپ کر رہا تھا، کافی دیر سے باتیں کر رہے ہیں، آپ بھی آئیے مل کر بیٹھتے ہیں. اس نے بڑی صفائی سے جھوٹ کر لیا.
मैं फौरन बोल पड़ी, नहीं सुने, ये सच नहीं बोल रहा, ये अभी कुछ देर पहले ही आया था, मैं तो इसे बात भी नहीं कर रही थी। मेरी बात सुनने के बाद जौहर ने कुछ सख्त लहजे में कहा, जाओ जाकर खाने का बंदोबस्त करो, बातों के लिए तुम्हें हमेशा वक्त मिल जाता है, कभी थोड़ा घर के काम पर भी तवज्जो दे लिया करो। ये पहला मौका था जब उसने इस तरह का रवैया अपनाया और उस वक्त मुझे अपने देवर पर शदीद गुस्सा आया। मैंने चुपचाप खाना तैयार किया और मेज पर रख दिया। शौहर का मूड काफी बिगड़ा हुआ लग रहा था। रात को जब मैं कमरे में आई तो वो मेरी तरफ देखे बगैर बोला, मुझे वो औरतें बिल्कुल पसंद नहीं जो गैर मर्दों से खुले अंदाज में बातें करती हैं, चाहे वो देवर ही क्यों ना हो। मैंने सफाई दी, वो झूठ बोल रहा था, आप गलत समझ रहे हैं। वो बोला, मैं 15 मिनट पहले घर आया था और तुम दोनों एक साथ कमरे में देखा, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। उस दिन के बाद मैंने खुद को मुकम्मल तौर पर बदल लिया। देवर से कतराने लगी, ना उससे बात करती, ना उसके करीब जाती। वो जहाँ होता मैं वहाँ से फौरन हट जाती। 4 दिन तक वो मेरे इस बदले हुए रवैये को खामोशी से देखता रहा। 5वें दिन आखिरकार बोल ही पड़ा, भाभी आपको मसला क्या है? मैं जहाँ बैठता हूँ आप वहाँ से फौरन चली जाती हैं। मैंने नरमी से लेकिन वाज़ेह अंदाज में जवाब दिया, तुम छोटे हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई मुझ पर शक करने लगा है। तुमने क्यों झूठ कहा कि हम 1 घंटे से बातें कर रहे थे? उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अरे वो तो मैंने मजाक में कह दिया था, भाई को तो वैसे ही शक की आदत है, इस बात पर तो मैं आपसे बात करने आया था। भाभी मेरे भाई को शक बहुत जल्दी हो जाता है, सच कहूँ तो आपकी शादी गलत इंसान से हुई है, मुझे तो आपके लिए बहुत अफसोस होता है। उसके अल्फाज सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी सी होने लगी थी। दिल चाहा कि उसे साफ साफ जवाब दूं, लेकिन फिर शौहर का बदलता हुआ रवैया भी सामने आ गया। मैंने जब्त किया और कहा, ऐसी कोई बात नहीं है सनी, बहुत अच्छे इंसान है, बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे फासला रखो। मेरी बात सुनकर वो बेनियाजी से कांधे उचकाता हुआ कमरे से निकल गया और मैंने सुकून का सांस लिया। दिल ही दिल में शुक्र किया कि शायद अब वो कुछ समझ गया है। उसी लम्हे मेरे दिल में एक और बात भी आने लगी कि अगर शौहर वाकई थोड़े गुस्से वाले हैं तो मुझे खुद भी हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि शादी को तो 1 महीना ही हुआ था और इस दौरान सनी का रवैया हमेशा मोहब्बत भरा रहा था, मगर पिछले चंद दिनों से उनकी नजरें और लहजा बदला बदला सा महसूस हो रहा था। कभी पूछते तुम गेट के करीब तो नहीं जाती, कभी कहते दरवाजा तुम्ही ने तो नहीं खोलती हो, और मैं हैरत से कहती नहीं, वो तो हमेशा आपकी अम्मी ही खोलती हैं। तो बस सर हिलाकर कहते, अच्छा है, वैसे भी तुम्हें दरवाजे के पास नहीं जाना चाहिए, हमारे मोहल्ले में कुछ लड़के बड़े आवारा हैं। और जब मेरे शौहर ने ये बात कही तो मुझे भी यही महसूस होने लगा कि शायद वो बहुत सख्त हैं। मैं हर काम से बचती थी जिससे वो मुझ पर शक न करें और मुझसे नाराज ना हो, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी सास ने कहा वो कुछ दिन के लिए लाहौर जा रही हैं अपनी बहन के पास, क्योंकि उनकी बहन बीमार है। देवर सास को लाहौर छोड़ने गया और मैं ये समझ रही थी कि वो वहाँ सास के साथ ही रहेगा, लेकिन वो तो अगले ही दिन वापस आ गया। शौहर ने देवर से कहा, तुम भी मम्मी के साथ लाहौर में रह लेते, लेकिन वो जवाब दिया, नहीं, मेरी पढ़ाई का मसला, यूनिवर्सिटी के इम्तिहान होने वाले हैं। अब मुझे और परेशानी होने लगी, क्योंकि देवर दोपहर को यूनिवर्सिटी से वापस आ जाता था और मेरे शौहर रात को आते थे। देवर का सारा दिन घर में गुजरता और उस वक्त को मैं बहुत मुश्किल से गुजार रही थी। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक करके बैठी रहती, बस यही सोचती कि कब वो बाहर जाए ताकि मैं किचन के काम कर सकूं। जब वो यूनिवर्सिटी में होता तब मैं जल्दी से खाना बनाकर आटा गूंद लेती और सारे काम मुकम्मल करके कमरे में वापस जाकर छुप जाती। लेकिन रात के खाने के लिए मुझे अपने शौहर के आने से पहले रोटियां बनानी पड़ती थी और मैं चाहती थी कि देवर कहीं बाहर जाए ताकि मैं सुकून से अपने काम कर सकूं, मगर मैं उसे ये कह नहीं सकती थी। जैसे ही वो घर से बाहर जाता और दरवाजे की आवाज़ आती, मैं फौरन अपने कमरे से बाहर आती, रोटियां बनाती और उसके वापस आने से पहले दोबारा अपने कमरे में जाकर छुप जाती। जब मेरा शौहर आता था तभी मैं कमरे से बाहर निकलती थी। खाने के दौरान मेरा देवर मुझे देखता रहता, जैसे कुछ कहना चाहता हो। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द ये दिन गुजरे और मेरी सास वापस आ जाए, क्योंकि यूं कमरे में हर वक्त बंद रहना मुझे घुटन भी होती थी। दूसरा, मेरा देवर वैसे भी कुछ बेशर्म किस्म का था, जो एकदम मेरे कमरे में आ जा सकता था। वो मेरा दरवाज़ा भी तो खटखटा सकता था कि बाहर निकलो, तुम क्या हर वक्त कमरे में रहती हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये वक्त कैसे गुजरेगा। अभी मैं इस वक्त को यही सोच रही थी कि तभी मेरी सास का फ़ोन आ गया कि उनकी बहन की हालत बहुत ख़राब हो गई, इसीलिए हो सकता है वो कुछ महीने लाहौर में ही रहें। ये सुनकर तो मेरी परेशानी और बढ़ गई थी। शौहर घर आता तो बार बार मुझसे सवाल जवाब करता कि जब यूनिवर्सिटी से वापस आता है तो क्या करता है, क्या घर पर ही बैठा रहता है, कहीं जाता है कि नहीं। मैं कहती, मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपने कमरे में होती हूँ। कहने लगा, तुम्हें सब मालूम है, तुम 24 घंटे कमरे में थोड़ी बैठी रहती हो।
मैंने कहा, सनी आप मुझसे किस किस्म की बातें कर रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? एक बार मुझे सब बता दें। मैं अपने शौहर को शक भरी बातों से तंग आ चुकी थी। कहने लगा, बता दूंगा। फिर मेरे करीब आकर कहने लगा, देखो मुझे शक करने की आदत नहीं है, लेकिन मुझे कोई ऐसी वैसी बात मालूम हुई तो मैं बहुत सख्त किस्म का इंसान हूँ, बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। अपने शौहर की धमकी सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं परेशान होकर रह गई थी। एक बार मेरा देवर घर में दाखिल हुआ तो बड़ा ही बदहाल, पसीने से भरा हुआ था। मुझे कहने लगा, भाभी खुदा के लिए मुझे अपने कमरे में छुपा लीजिए। मैंने कहा, ऐसा भी क्या हुआ? कहने लगा, बताने का वक्त नहीं है, बस मुझे अपने कमरे में छुपा लो। जिस कदर वो परेशान लग रहा था, न जाने उससे क्या हुआ था। फिलहाल मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम मेरे कमरे में छुप जाओ। ये कहकर मैं किचन में आ गई और यही सोचने लगी कि आखिर इसे क्या हुआ, ये ऐसा क्या करके आया है जो इस कदर परेशान है, और रंग भी इसका उड़ा हुआ है। मेरे देवर को आए हुए 2 घंटे गुजर चुके थे, ना वो कमरे से बाहर आया, न ही मुझे किसी बात का पता चला था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अभी शाम के 5 बज रहे थे। हमारे घर तो कोई आता जाता नहीं था, इससे कौन आ गया? मेरे शौहर तो रात को 10 बजे ही आते थे। मैंने पूछा, कौन? तो मेरे शौहर कहने लगे, दरवाज़ा खोलो। उनका लहजा बहुत ही सख्त था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। बजाय मुझसे बात करने के वो तो गुस्से से घर के अंदर दाखिल हुए और फिर पूरे घर की तलाशी लेने लगे। मैंने कहा, सनी क्या हुआ है, क्या देख रहे हैं? कहने लगे, अभी बताता हूँ। उनके लहजे को सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस लहजे में बात कर रहे हैं। उन्हें जब सारे कमरों की तलाशी ली और फिर कमरे का दरवाज़ा खोला तो कुछ देर बाद कमरे से बाहर मेरे देवर का गिरेबान पकड़ लिया और इसे ज़मीन पर फेंक दिया और कहने लगे, देखो वही हुआ ना जिसका मुझे शक था। ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था जब इसका अपना कमरा मौजूद है? मैंने कहा, अब ये मुझे क्या पता, ये तो 2 घंटे पहले आया था, बड़ा परेशान था। कहने लगा, मुझे अपने कमरे में छुपाने के लिए, इसीलिए मैंने इसे कमरे में छुपाया। मैं तो कब से किचन में काम कर रही थी। मेरी बात अभी मुंह में थी कि मेरे शौहर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। कहने लगे, झूठ बोल रही हो तुम मुझसे, तुम इसे अपने कमरे में हर वक्त बिठा कर रखती हो, न जाने क्या क्या करती हो। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, चलो निकलो मेरे घर से बाहर। मैं तो सनी की बात सुनकर ही परेशान हो गई थी। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपने देवर से कहा कि तुम बताओ ना कि तुम क्यों आए थे। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैं क्यों बताऊं भाभी, जो कुछ सच है वो सब भाई देख ही चुके हैं, अब इसे छुपाने का क्या फायदा। इस बार भी उसने मुझे दगा ही दिया था और झूठ बोला। फिर तो मेरे शौहर ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं रोती पीटती अपने घर पहुंच गई। अगले दिन ही मेरे शौहर ने मुझे फोन पर कहा बहुत जल्द मुझे तलाक के कागजात भी भिजवा देंगे, और मैं बहुत मिन्नत की कि वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार न थे। मैं खामोश होकर बैठ गई। मेरी भाभी और भाई मुझे ताने देने लगे, लेकिन 1 महीना गुजर गया। मुझे ना तो सनी ने तलाक दी ना कोई रिश्ता रखा। 1 महीने बाद सनी मुझे लेने आए। मेरी सास भी साथ साथ थी और बड़ी शर्मिंदा सी थी। मेरी सास रोने लगी और कहने लगी, मैं कुछ दिन पहले आई थी, मुझे ये जब मालूम हुआ तो मैंने सनी को बहुत डांटा और यासिर को कहा, तुमने ऐसा क्यों किया, तो तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं जानती कि सनी ऐसा कदम भी उठा सकता था। असल में उसे शुरू ही से शक करने की आदत है और मेरा छोटा बेटा बहुत ही मजाक करता है, इसीलिए शक का इलाज करने के लिए उसने अपने भाई के सामने जानबूझकर ऐसा रवैया तुमसे रखा कि वो जब तुम्हारे और उसके दरमियान कोई गलत बातचीत चल रही हो, जब सनी ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो सनी को एहसास हुआ कि तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई थी। 3 महीने उससे अच्छी तरह से एहसास हो गया है कि वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। फिर इसने मेरी मिन्नत की तो मेरे छोटे बेटे ने कहा कि नहीं, आपको जिस तरह शक करने की आदत है आप भाभी की जिंदगी को भी बहुत खराब बना देंगे। मैं भाभी के साथ जानबूझकर आपके सामने ऐसा रवैया रखता था, ये देखना चाहता था कि आप अपनी शादीशुदा रिश्ते को कितना अच्छा रख सकते हैं, लेकिन आपने तो उसे एक कच्ची डोर की तरह समझा। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता था कि ये रिश्ते कितने अनमोल हैं। सनी को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए आज ये मुझे अपने साथ लाया है। ये दोबारा कभी भी तुम पर शक नहीं करेगा। जो कुछ मेरे देवर ने किया वो एक इलाज का हिस्सा था, ताकि वो अपने भाई को एहसास दिलाने के काबिल बना सके कि अगर वो मुझे किसी की साथ बात करते देख ले तो या फिर मेरे कमरे में कोई मौजूद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुरी औरत हूँ। ये सुनकर मैं रोने लगी। मेरे देवर ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो असल में तो मेरी मदद कर रहा था। अक्सर ऐसा होता है, जब हम किसी को गलत समझते हैं वो हकीकत पता चलने पर सही निकलता है। फिर अपनी सास की बात सुनकर मैंने अपने शौहर को माफ़ कर दिया और उसके साथ अपने घर आ गई। जहाँ देवर ने मुझे देखा तो मुस्कुराने लगा और मुझसे कहा, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर अपने भाई और आपके साथ ऐसा रवैया रखा था। मेरा मकसद ये था कि देख सकूं कि क्या मेरी शादीशुदा भाई वाकई तब्दील हुआ है या नहीं, क्योंकि वो शादी से पहले भी बहुत शक्की मिजाज था। इसीलिए मैंने
آپ کے ساتھ بے تکلفی کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ جان سکوں کہ میرا بھائی اپنی شادی شدہ زندگی کو کتنی اچھی طرح نبھاتا ہے، لیکن میرے بھائی نے اسے صرف ایک معمولی بات سمجھا اور معاملے کو زیادہ بڑھا دیا۔ در حقیقت میں اپنے بھائی کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ رشتے کتنے انمول ہوتے ہیں۔ بیوی پر شک کرنا اس رشتے کو کمزور بنا دیتا ہے۔ جب میں آپ کے ساتھ بے تکلف ہو رہا تھا تو میرے بھائی نے شک کرنا شروع کر دیا اور آپ کو گھر سے نکال دیا، لیکن جب آپ چلی گئیں تب میرے بھائی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آج وہ آپ کو اپنے ساتھ گھر لے آیا ہے۔ دیور کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں مسکراہٹ آ گئی اور میں نے دل سے اسے معاف کر دیا۔ پھر ہم نے مل کر اپنی ساس کے ساتھ میرے دیور کے لیے ایک پیاری سی لڑکی تلاش کی اور یوں میرے دیور کی شادی ہو گئی اور میرے شوہر کی شک کرنے کی عادت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔